Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. And in the previous lecture, we have completed the Stone Age, okay, then we have completed Neolithic, Chalcolithic Age, everything. Now in this lecture, I will be starting a proto-history period, okay, proto-history period. Now, proto-history, okay, that means literary evidence is there but unable to decipher, उसको हम बोलते हैं proto history. Okay, then archaeological evidences are there. Okay, and this proto history, it belongs to Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. So finally we will start Indus Valley civilization period. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा, Indus Valley civilization period. Okay, now Indus Valley civilization, okay, from 2900 BC to 1700 BC, ये टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, अब मैं एक चीज बता दूं कि there were three other contemporary civilization during this period. ओके, तीन और कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी. टोटल 4 सिविलाइजेशंस थी. ओके, सो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो है मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया मॉडर्न डे इराक. ओके, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ओके, ऑन विच रिवर, ये भी पूछा जा चुका है आपके यूपीएससी में, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये याद रखिएगा, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर. समझ में आ रहा है? देन इजिप्टियन सिविलाइजेशन. इजिप्टियन सिविलाइजेशन. ओके, इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन विच रिवर? रिवर नाइल. बहुत ही फेमस रिवर है. ओके, रिवर नाइल. ओके, देन चाइनीज सिविलाइजेशन. यस, चाइनीज civilization. Okay, Chinese civilization was also there. On which river? Huangho. Huangho. Okay, and Indus Valley civilization. On which river? Indus River. ये याद रखिएगा. Which river? Indus River. समझ में आ रहा है? तो ये 4 सिविलाइजेशंस थी. ओके, ये याद रखिएगा. तो हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं दैट द सेंटर. अब दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई? 2900 बीसी. अब आपको पता है 3000 बीसी में इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, और वो क्या इवेंट था? कॉपर का इन्वेंट होना. कॉपर वाज इन्वेंटेड एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड इन इंडिया. समझ में आ रहा है? So copper was the first metal used in India, and in 2900 BC, because of development during the, and this period was also known as Chalcolithic period. Okay, this period was also known as Chalcolithic period, or you can say the period between the Neolithic and Chalcolithic. Okay, so finally the Chalcolithic period was started because copper was invented. Okay, copper was invented during this period. So 2900 BC. Okay, and the center of the civilization
सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज इन सिंध। सेंटर कहां पे था? सिंध एंड पंजाब। सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंध एंड पंजाब। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा। एट दैट टाइम द इंडिया वाज अनडिवाइडेड। Okay, today Pakistan and Afghanistan was also part of India itself at that time. Is that clear? ये याद रखिएगा। So from this center, Sindh and Punjab, from this center, the civilization spread towards all the directions. Is that clear? The civilization spread towards all the direction. अब कहां से कहां तक ये civilization spread हुई थी? अब हम ये देख लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। Is that clear? तो अब हम देखेंगे कहां से कहां तक ये सिविलाइजेशन एक्सटेंड हुई थी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट हड़प्पा, ओके, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी, दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज आल्सो डिफरेंट नेम्स। ओके, अभी मैं आपको मैप बना के दिखाता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज आल्सो डिफरेंट नेम्स। Different names like also known as Harappa civilization. Harappa civilization. Okay, and this civilization is also known as first urbanization in India. Urbanization. Second urbanization 6th century BC. First urbanization Indus Valley. First urbanization में क्या हुआ था? अब आप देखेंगे Indus Valley में urban centers बनते हैं। Okay, ज्योमेट्रिकल सिस्टमैटिक वे में सिटीज बनेंगे, हाउसेस बनेंगे, ग्रिड पैटर्न रोड्स होंगी, ऑल दिस थिंग्स। तो इन्हीं सब फीचर से कहा जाता है ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन? व्हाई? बिकॉज हड़प्पा इज आल्सो द साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा इज आल्सो द साइट ऑफ सिविलाइजेशन। इज दैट क्लियर? And Harappa is the first site to be discovered. Okay, Harappa is the first site which is discovered in 1921. 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था। Okay, 1921 हड़प्पा सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? हड़प्पा कहाँ है? मॉडर्न डे पाकिस्तान। Is that clear? ये याद रखिएगा। And this Indus Valley civilization also known as Bronze Age civilization. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज कब आया? 2500 बीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई? 2900। तो उसी के 4 साल बाद क्या आ गया? ब्रॉन्ज, 2500 बीसी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, एंड ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। And this civilization is also known as proto-historic civilization. Proto-historic civilization. समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा, proto-historic civilization. Okay. And proto-historic क्यों कहते हैं? Because this civilization had script, but it is not studied by any of archaeologists. It had script, but it is not deciphered, and that is why this civilization is known as proto-historic civilization. And as I have already told you that there were another 3 important civilizations which were contemporary to the Indus Valley civilization in the world, that is Mesopotamia civilization. And Mesopotamia civilization को Sumerian civilization भी कहा जाता है। Okay, Mesopotamia means, what is the meaning of Mesopotamia? Okay, what is the meaning of Mesopotamia? Means land between 2 rivers. Okay, Mesopotamia, land between 2 rivers. और 2 रिवर कौन सी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ओके, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, चाइनीज होंगहो। समझ में आ रहा है? सो फ्रॉम हड़प्पा, फ्रॉम सिंध एंड पंजाब, ओके, फ्रॉम सिंध एंड पंजाब दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड एक्सटेंडिंग। ओके, अब ये कहां से कहां तक हुई? तो अब हम ये मैप देखेंगे। नॉर्थ में सबसे ज्यादा, नॉर्थ में ये कहां पे थी सिविलाइजेशन?
नॉर्दर्न पॉइंट क्या था इस सिविलाइजेशन का? मंदा। मंदा, मंदा कहां पे है आज? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और कौन सी रिवर है यहाँ पे? रिवर इंपॉर्टेंट है, चेनाब रिवर। ओके, एंड प्लीज कीप दिस इन योर माइंड दैट द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, ये जितनी भी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये सब रिवर्स के आसपास ही मिलेंगी। ओके, ये जितनी भी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, रिवर वैली के पास में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड ईस्टर्न साइड अलामगीरपुर। अलामगीरपुर ये कहां पे? यूपी। अलामगीरपुर यूपी। और यहां पे कौन सी रिवर थी? है मतलब हिंडन रिवर। हिंडन रिवर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, देन southern point, sorry, western point. Okay, western point. Okay, western point, सटका गेंडर। ओके, सटका गेंडर ये वेस्टर्न पॉइंट है किस चीज का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये याद रखिएगा, सटका गेंडर, ओके, इज द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहां पे कौन सी रिवर है? दशक। दशक रिवर। ओके, दशक। अभी सटका गेंडर है कहां पे? नियर अफगानिस्तान एंड ईरान बॉर्डर। अफगानिस्तान एंड ईरान बॉर्डर। एंड द सदर्न पॉइंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन दैट इज दाइमाबाद। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, दाइमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके, ये याद रखिएगा। और यहां पे कौन सी रिवर है? प्रवारा रिवर। प्रवारा रिवर। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहां से कहां तक एक्सटेंड हुई विद इन दिस एरिया इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। And the total area of Indus Valley civilization, it's around 1.3 million square kilometer. Okay, 1.3 million square kilometer is the total area of Indus Valley civilization. Okay, ये याद रखिए। So this is the map. Okay, and there are various archaeologists जिन्होंने अलग अलग साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उनको ढूंढा, एक्सकेवेट किया। ओके, ये याद रखिएगा। बहुत सारे ऑथर्स हैं। ओके, ये याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ओके, एंड दीज आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव डिस्कवर्ड 4 डिफरेंट रेसेस of people, okay, during this civilization। 4 different races उन्होंने ढूंढी आर्कियोलॉजिस्ट ने। okay, 4 different races, okay, of people, okay, in Indus Valley civilization। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ने वो 4 रेसेस कौन सी थी? पहले मोंगोलॉइड्स। मोंगोलॉइड्स जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप फेसेस देखते हैं, मोंगोलॉइड फेस। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। देन प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। समझ में आ रहा है? देन एल्बिनॉइड्स। एल्बिनॉइड्स तीसरी रेस है। एंड लास्ट रेस द्रविडियंस। द्रविडियंस। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, द्रविडियंस। ओके, एंड यहां पे एक नई लैंग्वेज धीरे धीरे यहां पे, अब याद रखिएगा 4 रेसेस थी। ओके, तो अब हर रेस की अपनी लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए लैंग्वेजेस के उसी टाइम से। 2 ग्रुप कैसे बन गए? नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेज एंड सदर्न इंडियन लैंग्वेज, यहीं से बना ग्रुप। नॉर्थ
इंडियन लैंग्वेजेस एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, दैट इज आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को क्या कहा जाने लगा? द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी है सबसे पुरानी? तमिल। समझ में आ रहा है? तमिल। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो लैंग्वेजेस भी डेवलप होना शुरू हुई, ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट सिटीज हमें पता होने चाहिए ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट सिटीज। ओके, तो अगर हम देखें कितनी साइट्स थी, तो टोटल देयर वर 1400 साइट्स। और आज ये जो 1400 साइट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में कितनी साइट्स हैं? 900, पाकिस्तान में 500 साइट्स। इज दैट क्लियर? तो अब एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में कौन सी जगह है? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो मींस माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। एंड दिस मोहनजोदारो इन सिंधी लैंग्वेज में बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड को सिंधी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मोहनजोदारो। ओके, इंडिया में यही सेम मीनिंग किस साइट की है? लोथल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लोथल। लोथल ऑल्सो मीन्स माउंड ऑफ डेड, गुजराती। गुजरात में है लोथल, ये गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज में लोथल को क्या बोलते हैं? माउंड ऑफ डेड। समझ में आया? तो ये कुछ फैक्ट्स थे, दीज आर सम फैक्ट्स, ओके, रिलेटेड टू योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स, ओके, ये याद रखिएगा, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। सो व्हाट we can observe from this Indus Valley civilization? Notable observations. Notable observations. Okay, so पहली चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो क्या है? that most of the settlements in Indus Valley civilization are on banks of rivers. ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कहां पे है? रिवर्स पे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। एंड दूसरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लार्जेस्ट ऑफ 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्टियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सभी में लार्ज है, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। ओके, देन और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैंने आपको एरिया बताया कितना है? 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप एरिया भी लिख सकते हैं, एरिया 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा। ओके, एंड दिस एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है ट्रायंगुलर है शेप। ओके, and no other ancient civilization was extended to a such large extent area. ये याद रखिएगा। ओके, तो पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी पाई गई? हड़प्पा, हड़प्पा। ओके, पहली साइट जो 1921 में डिस्कवर हुई वो कौन सी थी? हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। फर्स्ट साइट was discovered, okay, in 1921, Harappa civilization.
इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके ओके। और कहा जाता है कि वेरियस एविडेंसेस, देयर वर वेरियस एविडेंसेस दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दे वर डेफिनेटली in touch with other civilization, most prominently being the Mesopotamian civilization. कहा जाता है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन एंड अदर सिविलाइजेशन के टच में भी थे। ट्रेड होता था उस टाइम पे, समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, क्योंकि सील्स पाई गई है, समझ में आ रहा है? सील्स पाई गई। ओके, सो दीज वर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये सिविलाइजेशन कैसे बनी, ओरिजिनेशन कैसा है इसका, ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन। ओके, अब ये सिविलाइजेशन ओरिजिनेट कैसे हुई? ओके, तो दो मेन ओपिनियन है इसके ओरिजिनेट होने के। वो दो ओपिनियन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम मेहरगढ़, मेहरगढ़, समझ में आ रहा है? और कुछ लोग कहते हैं इसका ओरिजिनेशन हुआ है साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया। अब मेहरगढ़ क्यों? So most of the researchers they link the origin of Indus Valley civilization to the Neolithic site मेहरगढ़, क्योंकि इस टाइम पे कौन सी साइट थी? मेन नियोलिथिक कल्चर चल रहा था 3000 बीसी में। तो कहा जाता है जो नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़, वहां से शुरुआत हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेहरगढ़। एंड इट इज सेड दैट मेहरगढ़ वाज द सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द हंटर गैदरर टू फार्मिंग। कहा जाता है कि यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था, मेहरगढ़ से ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था? लोग फ्रॉम हंटर गैदरर से, हंटर गैदर से लोग क्या बन गए थे? फार्मिंग में आ गए थे। फार्मिंग, फार्मिंग बेसिकली वीट, वीट की फार्मिंग, बार्ली, बार्ली, वीट एंड बार्ली वर फाउंड। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा। देन हर्डिंग वाज देयर, हर्डिंग होती थी, कैटल हर्डिंग, समझ में आ रहा है? कैटल, शीप, गोट्स, ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड कहा जाता है दैट मेहरगढ़ के जो लोग थे उनकी ट्रेड लिंक्स भी थे अरेबियन सी के साथ। ओके, मेहरगढ़ के लोग ट्रेड करते थे कहां पे? सेंट्रल एशिया में। ओके, सेंट्रल एशिया में ये ट्रेड कैसे करते थे? अरेबियन सी के थ्रू। ओके, तो ट्रेड लिंक्स भी पाए गए। ओके, कि सेंट्रल एशिया में ट्रेड करते थे, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So in the light of these evidences, it has been made clear that the foundation of Indus Valley civilization was laid in the Neolithic period. Foundation, इससे हमें पता चलता है कि ये जो फाउंडेशन है वो कहां से आया है? नियोलिथिक पीरियड से। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। ओके, नाउ साउथ इंडिया। अब अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उनकी भी एक अपनी थियरी है। ओके, अब साउथ इंडिया के लोग क्या कहते हैं? दैट देयर इज कंटेम्पररी नियोलिथिक सेटलमेंट फाउंड इन साउथ इंडिया आल्सो इन कर्नाटका। कहा जाता है कर्नाटका में भी नियोलिथिक सेटलमेंट था, कर्नाटका। ओके, contemporary settlement in Karnataka at that time. And from this point of view, some scholars they say that Indus Valley civilization was a Dravidian civilization. इसी व्यू से लोग कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है? द्रविडियन सिविलाइजेशन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके, द्रविडियन सिविलाइजेशन, is that clear to you all? तो ये है ओरिजिनेशन। ओके, सो इन दिस लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, हम फीचर्स देखेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।